Namaskar everyone. Let's see the solution of the exercise 14.1. All of these questions are from the NCERT textbook. Let's see the question number 1. A die is rolled. Let E be the event, die is solved 4 and F be the event, die solved even number. Are E and F mutually exclusive? It means that if we have proper idea about the mutually exclusive, then we have no problem to solve this question. So if we have idea about the intersection of two sets, if the intersection of two sets is not the phi, then this is the not mutually exclusive. If it is phi, then this is the mutually exclusive. So let's see here. When die is rolled, the sample space is given by, if we consider about what is the sample space, then it is very easy. Sample space, it means that this is the universal set. So the universal set which will be formed when we roll a die, then this one will be 1, 2, 3, 4, 5, 6. So here universal set equal to sample space. So S equal to or sample space equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6 enclosed by the braces or middle bracket. So S is a set and this is the universal set. According to the question, E will be 4. So this is a singleton set having one element, that is 4, and F, the element of F are 2, 4, 6. Now we find out E intersection F, and this is the 4, and this is not equal to the empty set. Therefore, E and F are not mutually exclusive events. So if you want to note down the solution of this question, then you can. So let's see the second question. This is the second question. I am going to read the question number 2. A die is thrown. Describe the following events. Question 2 has 6 sub questions and also find here. So let's see the question 2 to 1. A number less than 7 to a number greater than 7, or find out your textbook, NCERT textbook, and see the question. So also ask us here A union B, A intersection B, B intersection C, E intersection F, D intersection E, A minus C, D minus E, E intersection not F or complementary of F, and this is the not F or complementary of F. So let's see, this is very easy question. When a die is thrown, sample space is given by here S equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now according to the question here, A will be less than 7. So it will be 1, 2, 3, 4, 5, 6. And here B will be written here a number greater than 7. So uh, when we roll a die, then we don't get any number which is greater than 7. So this one will be the B equal to 5, or B is a set which has no element. And here C a multiple of 3. So in 1, 2, 3, 4, 5, 6, the multiple of 3 will be 3 and 6. So C will be 3 and 6. C D a number less than 4. So we see in S which are less than 4 or will be 1, 2, 3. So here D will be 1, 2, 3, and E an even number greater than 4. So here even number which is greater than 4 is 6. So I have written here E equal to 6, and let's see the 2 to 6, a number not less than 3. So here will be 3, 4, 5, 6. So hope that there is no problem to understand the explanation of the solution of this question. So let's see here also ask us
A union B. So here A is A union B will be 1, 2, 3, 4, 5, 6, and A intersection B. There are no any common element in A and B. So A intersection B is the 5, or in other word we say that event A and B are the mutually exclusive. So the intersection of two events is a empty set, then we say that these two events are mutually exclusive. Hope that there is no problem to understand what is the mutually exclusive. And question number 1 is related to the mutually exclusive. So here A union C will be 3, 6. E intersection F will be 6. D intersection E is 5 or empty set. So we also here say that D and E are the mutually exclusive. A minus C, it means that we strike out all elements of C from A, and the remaining element of A will be A minus C. So see here A minus C. So this is the A 1, 2, 3, 4, 5, 6, and C is the 3, 6. So we strike out 3 and 6, then we get 1, 2, 4, 5. So A minus C will be 1, 2, 4, 5. Similarly, D minus C equal to 1, 2, 3, and not F. It means that we strike out all element of F from the sample space. So when we strike out all element from the sample space of the element of F, then we get not F or complement of F. So this is 1, 2. So E intersection F or E intersection not F is the 5. So E and not F is the mutually exclusive event. So I have got the chat to continue into हिंदी in English both. तो यहाँ पर E और F E और not F जो है आपका इंटरसेक्शन जो है इम्पिटी सेट है, तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि E और not F जो है आपका मचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो यहाँ आप क्वेश्चन नंबर 3 को भी देख लीजिए। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्स रोलिंग ए पेयर ऑफ डाइस एंड रिकॉर्डिंग द नंबर दैट कम अप, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स। होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बोला जा रहा है जहाँ पर एक पेयर ऑफ डाइस को रोल किया जा रहा है, मतलब 2 डाइस को रोल किया जा रहा है, एंड रिकॉर्डिंग द नंबर को रिकॉर्ड किया जा रहा है दैट कम अप, जो आ रहा है। तो यहाँ बोल रहा है डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट, द सम इज ग्रेटर देन 8, 2 occurs on either die, the sum is at least 7 and a multiple of 3, which pairs of these events are mutually exclusive। देखिए mutually exclusive से रिलेटेड फिर यहाँ भी क्वेश्चन पूछ दिया। इट मीन्स दैट यहाँ पर जो भी निकालेंगे, अगर A इंटरसेक्शन B हाई हो जाता है, देन वी से दैट A एंड B आर mutually exclusive, या फिर A इंटरसेक्शन C हाई हो जाता है, तो हम लोग बोल सकता है A और C जो है mutually exclusive है। और यदि फाई नहीं होता है तो फिर हम लोग बोल सकते हैं नॉट mutually exclusive है। सिमिलरली बी और सी पर ट्राई करेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए, जब आप 2 डाइस को आप क्या कहते हैं कि रोल कीजिएगा, तो पहला में आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, दूसरा में भी आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। इट मीन्स दैट आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 into 1, 2, 3, 4, 5, 6। It means that if you have proper idea about the Cartesian product of two set, अगर आपको टू सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर आइडिया है, तो आप यहाँ इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं सैंपल स्पेस। तो यहाँ देखिए सैंपल स्पेस को आपका सेट बिल्डर फॉर्म में यहाँ पर लिखा गया है। एक्स वाई इज द एलिमेंट ऑफ, और ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई इज द एलिमेंट ऑफ एस सच दैट एक्स वाई इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो पहला डाइस
में आपका 1 2 3 4 5 6 है, दूसरा में 1 2 3 4 5 6 है। यहाँ पर देखिए एस का नंबर ऑफ एलिमेंट 6 इंटू 6 36 हो जाएगा। देखिए इसको यहाँ पर लिख दिया गया है 1 1 फिर आपका 1 2 फिर 1 3। तो देखिए ये 6 6 6 6 6 तो 6 इंटू 6 इक्वल टू 36। अब यहाँ पर जैसे जैसे बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पर चलते हैं। द सम इज ग्रेटर देन 8। यहाँ सम होना चाहिए ग्रेटर देन 8। अब यहाँ देखिए 1 1 जो है 2 होता है, दिस इज नॉट ग्रेटर देन 8। ये ग्रेटर देन 8 नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ ए का जो एलिमेंट होगा, ए इज द सबसेट ऑफ आपका एस ही होगा। ए का जितना भी एलिमेंट है आपका एस से ही आएगा। तो इट मीन्स दैट ए जो है आपका 3 6 हो जाएगा। मतलब देखिए ग्रेटर देन 8 हो गया, 3 + 6 9, फिर 4 5 4 6 इस तरह से ये आपका हो जाएगा। बी देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि टू अकर्स ऑन अदर साइड, आइदर साइड, टू अकर्स ऑन आइदर साइड, आइदर डाई, दोनों में से एक डाई में आपका 2 आना ही चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बी को 2 1 है, 2 2 है, दोनों में आ गया, 2 3 है, 2 4 है, 2 5 2 6, फिर आपका 1 2 है, दूसरा डाई में 2 आया, फिर 3 2 है और यहाँ देख 2 2 आता तो 2 2 देखिए ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया है। अगर आप सी को देखते हैं तो सी बोलता है कि द सम इज एटलीस्ट 7। एटलीस्ट मतलब कम से कम 7 होना चाहिए एंड ए मल्टीपल ऑफ 3। तो यहाँ पर देख लीजिए 3 और 6 9 हो गया और ये मल्टीपल ऑफ आपका 3 भी है। 4 5 हो गया, 5 4 हो गया, 6 3 हो गया और फिर 6 6 हो गया। यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए ए और बी में कुछ मिल रहा है क्या? तो ए और बी में आप देखते हैं तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। इट मीन्स दैट ए और बी जो है आपका मचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। आप ए और सी देखिए तो ए और सी में 3 6 एक मिल गया। तो इट मीन्स दैट ए और सी जो है मचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। फिर आप बीसी में देख लीजिए, बीसी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। मतलब बी इंटरसेक्शन सी में कोई भी एलिमेंट आपका कॉमन नहीं है। तो इट मीन्स दैट बी और सी जो है आपका मचुअली एक्सक्लूसिव है। यहाँ भी देख लीजिए आप, इट इज ऑब्जर्व दैट जो आप अभी कल एक्सप्लेनेशन किए उससे पता चला ए इंटरसेक्शन बी हैव नो एनी कॉमन एलिमेंट। तो उसके लिए इम्पिटी सेट हो गया और इम्पिटी सेट के लिए हम लोग 5 लिखते हैं। सो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। तो यहाँ पर 5 आया तो ए और बी ये इवेंट जो है आपका मचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएगा। बी सी का भी अभी हम लोग एक्सप्लेनेशन किए, बी सी भी आपका मचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएगा। लेकिन सी इंटरसेक्शन ए आपका देखिए क्या हो गया, नॉट 5, ये कुछ एलिमेंट आ गया। तो सी और ए जो है आपका मचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा। तो यहाँ लिखा है हंस इवेंट ए बी एंड इवेंट बी एंड सी आर मचुअली एक्सक्लूसिव। तो होप दैट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये क्लास मैं 9:15 से शुरू किया हूँ और अभी 9:33 हो रहा है। तो 18 मिनट का ये क्लास हो चुका है। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग देख लीजिए। अभी यहाँ बोल रहा है मचुअली एक्सक्लूसिव, सिंपल और कंपाउंड। तो आप यहाँ पहले तो मचुअली एक्सक्लूसिव के कंसेप्ट को समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल इट मीन्स दैट सिंगल एलिमेंट होगा, इवेंट में सिंगल एलिमेंट होगा। कंपाउंड इट मीन्स दैट मोर देन वन एलिमेंट होगा। तो ये आपका इफ वी हैव आइडिया अबाउट द मचुअली एक्सक्लूसिव, सिंबल एंड कंपाउंड, देन वी हैव नो प्रॉब्लम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर आपके पास मचुअली एक्सक्लूसिव का कंसेप्ट तो बिल्कुल आपका क्लियर हो गया कि अगर दो इवेंट है और दोनों इवेंट का इंटरसेक्शन यदि इम्पिटी सेट आ रहा है तो मचुअली एक्सक्लूसिव होगा। अगर नहीं आ रहा है तो नॉट मचुअली एक्सक्लूसिव होगा। अभी सिंपल का कंसेप्ट को आप जान लीजिए। सिंपल इट मीन्स दैट वहां पर कितना एलिमेंट आ जाएगा, सिंगल एलिमेंट होगा। अगर सिंगल एलिमेंट है तो आपका मचुअली सिंपल है, और यदि मान लीजिए कि मोर देन वन एलिमेंट है तो फिर हम लोग वहां बोल सकते हैं ये कंपाउंड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन को आप यहाँ देखिए। तो when 3 coins are tossed the simple space is given by। 3 कॉइन को टॉस करेंगे, एक कॉइन में आपका दो ही चीज होता है, हेड एंड टेल।
सो HT इंटू HT इंटू HT, इट मीन्स दैट टोटल एलिमेंट जो सैंपल स्पेस में होगा 8 होगा। देख लीजिए आपका 1 2 3 4 5 6 7 और ये आपका 8 हो गया। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है कि मच वाली एक्सक्लूसिव, तो यहाँ क्वेश्चन देख लीजिए। 3 सिक्के को एक साथ मतलब उछाला गया है ना, एक बार टॉस्ट किया गया। बोलता है लेट ए डिनोट द इवेंट 3 एड सॉ। अभी आपका ए जो है एक इवेंट है जिसमें तीनों हेड दिखाई पड़ता है, 3 हेड दिखाई पड़ता है। फिर आपका बी जो है, बी डिनोट कर रहा है एक इवेंट को जिसमें 2 हेड और 1 टेल है। सी भी एक आपका इवेंट है जो ये बता रहा है कि 3 टेल्स है। डी एक इवेंट है जो आपको बता रहा है कि एक हेड ऑन द फर्स्ट कॉइन, पहला कॉइन में एक हेड है। और आपको बोल रहा है इसी में से, ये सारे इवेंट में से आपको बताना है मच वाली एक्सक्लूसिव, सिंपल और कंपाउंड। सैंपल स्पेस आपको समझ में आ गया होगा, HT इंटू एच टी अगर आप करेंगे तो ये पूरा आ जाएगा। इट मीन्स दैट यदि आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट, सेट में कार्टेशियन प्रोडक्ट एक टॉपिक होता है, अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी है तब तो आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे। अदरवाइज यदि नहीं है तो पहले आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट के कंसेप्ट को ही क्लियर करना होगा। तो होप दैट मैं यहाँ अपेक्षा कर रहा हूँ, आशा कर रहा हूँ कि आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में आइडिया होगा। तो लेट्स सी, यहाँ पर देखिए सैंपल स्पेस को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आप सैंपल स्पेस यहाँ समझ गए। अगर आप यहाँ आते हैं तो A इक्वल टू HHH बोला है, तीनों कॉइन में हेड होना चाहिए। अभी बोला कि 2 हेड और एक टेल होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए 2 हेड और एक टेल वाला अगर आप लीजिएगा तो आपका HHT हो जाएगा, फिर आपका HTH हो जाएगा, फिर आपका THH हो जाएगा, जो कि देखिए यहाँ पर लिखा भी है B। और C आपको बोला है कि तीनों में आपका हेड होना चाहिए, सॉरी टेल होना चाहिए। और डी में बोला है कि कम से कम 2 कॉइन में हेड होना चाहिए, कम से कम 2 में, तो 3 में भी हेड हो सकता है। अब हम लोग यहाँ से इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना शुरू किए, तो ए इंटरसेक्शन बी आपका 5 हो गया। ए और बी में कोई भी एलिमेंट जो है कॉमन नहीं है। इट मीन्स दैट ए और बी आपका मच वाली एक्सक्लूसिव इवेंट हो जाएगा। आप ए इंटरसेक्शन सी भी देख लीजिए, आप इसको नोट डाउन भी आप लोग कर लीजिएगा इसके सॉल्यूशन को। अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इफ वी सी हियर ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 5, तो ए और सी भी आपका क्या हो जाएगा, मच वाली एक्सक्लूसिव हो जाएगा। ए देखिए यहाँ पर है ए इक्वल टू HHH और सी इक्वल टू TTT। अगर ये देखिए इसमें दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, देयर इज नो एनी कॉमन एलिमेंट in A and C. So A and C is the empty set. Intersection of A and C is the empty set. So the event A and C is the mutually exclusive. अभी A इंटरसेक्शन D में जब हम लोग आते हैं, A आए और D में आए, तो देखिए कॉमन आ गया HHH. So this is not the empty set. तो A और D जो है आपका mutually exclusive नहीं होगा। फिर बी इंटरसेक्शन सी यहाँ पर फाइंड आउट कर दिया गया है, जो 5 आया। बी इंटरसेक्शन डी और फिर आपका सी इंटरसेक्शन डी फाइंड आउट कर दिया गया। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, आपके पास मच वाली एक्सक्लूसिव का जो कंसेप्ट है बिल्कुल क्लियर है। तो इवेंट ए एंड बी, इवेंट ए एंड सी एंड इवेंट बी एंड सी एंड इवेंट सी एंड डी आर ऑल मच वाली एक्सक्लूसिव। मतलब ए इंटरसेक्शन बी आपका 5 आया है, ए इंटरसेक्शन सी आपका 5 आया है, बी इंटरसेक्शन सी है आपका 5 आया है, सी इंटरसेक्शन डी भी आपका 5 आया है। तो हाफ दैट अब यहाँ सिंपल देख लीजिए, सिंपल का भी आपके पास बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है, आपको बताया है। इट इज एन इवेंट हैज ओनली वन सैंपल पॉइंट ऑफ ए सैंपल स्पेस, मतलब एक ही एलिमेंट होगा। इट इज कॉल्ड ए सिंपल इवेंट। थस ए एंड सी आर द सिंपल इवेंट। अब ए और सी को यहाँ पर आप देख लीजिए,
ए में देखिए एक ही एलिमेंट है एच एच एच, सी में भी देखिए एक ही एलिमेंट है टी टी टी, जबकि बी में आपका 3 एलिमेंट है 1 2 3, सो ये कंपाउंड इवेंट हो जाएगा। डी में भी देखिए आपका 1 2 3 4 एलिमेंट है। सो लेट्स सी हाउ दैट आपको सिंपल और कंपाउंड का भी कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ देखिए इफ एन इवेंट हैज मोर देन वन सैंपल पॉइंट, मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट होगा, ऑलरेडी आप लोगों को बता चुके हैं, तो ये कंपाउंड हो जाएगा। सो बी एंड डी आर द कंपाउंड इवेंट। सो आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 4 सॉल्व किए। 1 to 4 को आप जैसे ही सॉल्व किए तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि मचवली एक्सक्लूसिव क्या होता है, सिंपल क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है। ये दो कंसेप्ट अभी आपके पास आया। आपको ये भी पता चल गया कि सैंपल स्पेस क्या होता है। इट मीन्स दैट अगर आप सेट का स्टडी किए होंगे तो सेट में जो यूनिवर्सल सेट होता है उसी को हम लोग सैंपल स्पेस कहते हैं। अर्थात हम यदि कोई एक्सपेरिमेंट डन करते हैं, एक्सपेरिमेंट डन करने के बाद हमारे पास जो भी उसमें एलिमेंट आता है उसको हम लोग सैंपल स्पेस कहते हैं। सपोज दैट यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि यदि हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि भाई एक डाई को हम लोग थ्रो करते हैं, तो इफ वी हैव प्रॉपर आइडिया अबाउट द डाई, यदि हमारे पास डाई का प्रॉपर आइडिया होगा तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि यहाँ का सैंपल स्पेस क्या होगा। इट मीन्स दैट यदि आप डाई को थ्रो कर देते हैं तो क्या आएगा, आप ऑलरेडी 1 2 3 4 5 6 आएगा, इसके अलावा यहाँ पर और कुछ नहीं आएगा। इट मीन्स दैट 1 2 3 4 5 6 जो है डाई को जब हम लोग रोल करेंगे तो हमारे पास ये सैंपल स्पेस हो जाएगा या यूनिवर्सल सेट होगा। अब इस सेट से जितना भी सबसेट होगा, 1 2 3 4 5 6 से जितना भी सबसेट होगा वो सारा का सारा सबसेट जो है आपका इवेंट हो जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट जो आएगा, अगर आप बोलेंगे कि कितना सबसेट होगा, तो नंबर ऑफ सबसेट विल बी 2 to the power 6, सॉरी 2 to the power n, मतलब आपका नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है। तो 1 2 3 4 5 6 आपका 6 एलिमेंट है, 2 to the power 6। इट मीन्स दैट 2 into 2 into अगर आप 6 बार कर लेते हो तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और 32 जा आपका 64 और 64 2 जा 128 और 128 2 जा आपका हो जाएगा 256। इट मीन्स दैट यदि हम इस एक्सपेरिमेंट को डन करते हैं तो 256 आपका इवेंट आएगा। इस इवेंट में एक इवेंट जो होगा जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, जिसको हम लोग फाई बोलेंगे, और एक इवेंट ऐसा होगा जो मेरा 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा उसमें एलिमेंट, तो जिसमें फाई होगा उसको हम लोग बोलेगा इम्पॉसिबल इवेंट। सो क्या बोलेगा, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इट मीन्स दैट उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट है ही नहीं, मतलब उसमें जो सेट आया वो आपका क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। और एक 1 2 3 4 5 6 जो आया, जो यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 अगर डाई को रोल करते हैं तो वही आ रहा है, और यहाँ पर सबसेट में भी वही आ गया, तो इसको हम लोग श्योर एंड सर्टेन इवेंट बोलेंगे, जो आपके कंसेप्ट में है, आपके सिलेबस में है। तो इसको मैं इस वीडियो को मैं यूट्यूब में अपलोड भी कर दूंगा, या ये यूट्यूब में रहेगा, आप वहाँ पर और एक दो बार मेरे स्टेटमेंट को सुन लेंगे तो आपका क्लास और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वंस अगेन आई एम गोइंग टू recap this class into the English, and so English version of this class will be useful to the students whose medium of instruction is English. Today we have solved just around 4 questions, and we clear the concept of mutually exclusive, simple and compound. So if we have proper idea about the set, universal set, then we have no problem to understand probability. So the
subset of the universal set or all subset of the universal set are the event. So what will be the number of events? So if we have idea about what are the number of element in the sample space, so universal set is also known as, or in probability this one is known as the sample space. So if we have idea about the number of element in the sample space, then we have no problem to find out what is the number of subset. So in the sample space, we have number of element is 6. Therefore, number of subset will be 2 to the power 6. So, number of event here will be 256. Suppose that if we take the example of toss a coin, then a coin has only 2 elements. So, what will be the sample space? So sample space will be H and T, because H is the first letter of the head and T is the first letter of the tail. So what will be the total number of subset in HT? So here number of element is H and T. So number of element is 2. So the number of subset will be 2 to the power 2. So here number of total event will be 4. So one event has no element. This one is known as the empty set, and one element which is just equal to the HT. So this is the universal set. So this universal set HT each or this event is known as the what? This is known as the sure and certain event. And the event which has no element, and this is the empty, is known as the what? Then this is the impossible event. So we have possible event, we have impossible event, and possible event is also known as the sure and certain event. Impossible event, it means that it has no element. We have no problem to understand what is the sample space. We have no problem to understand what is the event. And if we have idea about intersection of two event is the empty set, then this is the mutually exclusive. And event has one and only one element, then this is the simple event. And event which has more than one element, then we say that this is the compound event. तो आज के कक्षा में हम लोग इतना ही स्टडी किए, और होप दैट जितना भी बताए वो सारा चीज आपका क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर है तो आप चैट भी कर सकते थे, तो यहाँ पर तो चैटिंग कुछ आया ही नहीं, तो इट मीन्स दैट अब मैं इस क्लास को ओवर करूंगा। केवल ओवर करने से पहले थोड़ा सा आप लोगों से ये जान लूंगा कि मेरा आवाज और स्क्रीन किस तरह से दिख रहा था, वो चैट में आप लोग लिख दो। और हमको पता है आप ही लोग तीनों हो, तो तीनों अपना नाम भी चैट में लिख दो, ताकि हमको पता चल जाए कि आप लोग शुरू से इसको देख रहे थे। अगर इसको आप लोग बढ़िया से देखें तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसको लिख के पोस्ट कर देना। तो होप दैट ये 30 मिनट्स का आज ये क्लास हुआ। अब मैं ये ओवर कर रहा हूँ।